Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly and you all are completing your work. You know that now we have started chapter 4 of your main course book. The name of the chapter is The Ant and the Dove. Let me write the name of the chapter here. It is chapter 4, The Ant and the Dove. मेन कोर्स बुक का ये चैप्टर 4 है and this chapter I had started I think two days back. Children, this is a picture story as you know. इस चैप्टर में पिक्चर के थ्रू इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है. So we'll continue this chapter in today's video. You can open your book. Page number is 36. Page number 36. Till now what I have explained is, let me revise that for you. One day an ant was busy looking for food on a river. In this chapter there was an ant, and that ant was looking for food. The ant was searching for food near a river bank. I have explained to you what is the meaning of looking for. Looking for means searching, finding something, and a river bank means the sides of a river. The area near the two sides of the river are called river banks. So that ant was searching for food near a river bank, and he found a big grain. While searching for food, he found a big grain and he felt very excited, and he exclaimed that, oh wow, what a big grain. And then he decided that he will take that grain to his home. But suddenly what happened? A strong wind blew, and that blew him into the river. बहुत तेज हवा बही. A strong wind blew and it threw that ant into the river. उड़ा के उस हवा ने ant को पानी में गिरा दिया, रिवर में उसको गिरा दिया. मतलब हवा के झोंके से, हवा के फोर्स से वो छोटा सा ant पानी में गिर गया, रिवर में गिर गया. देन व्हाट हैपेंड? कोई भी अगर ऐसा अचानक पे पानी में गिर जाएगा तो क्या करेगा? दैट पर्सन और दैट थिंग विल स्ट्रगल टू सेव हिज और हर लाइफ, है ना. कोई भी अगर अचानक पे कहीं जिसकी लाइफ को अगर ख़तरा होता है, जिसकी लाइफ डेंजर में होती है, तो सबसे पहले वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है ना. अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाता है टू सेव हिज और हर लाइफ. तो ये चींटे ने भी कोशिश की. द ant struggled for its life. It struggled to save its life from drowning. डूबने से अपने आप को बचाने के लिए उसने स्ट्रगल शुरू किया. And it also started crying loudly. It started asking for help. It cried, help, help, someone please help. होता है ना, को अगर परेशानी में होते हैं तो बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं. Then what happened? Near that river there was a tree, and on that tree there was a dove. Dove is a white pigeon, isn't it? So that dove heard the cries of the voice of ant, and he thought that the dove thought that the little ant is in trouble, the little ant is in difficulty, and she must help him. So what she did, she plucked off a leaf from the branch. जिस वो पेड़ पे तो बैठी थी डव, तो उसने उसी पेड़ में से एक पत्ता तोड़ा. आपको मैंने बताया था प्लग्ड ऑफ क्या होता है. जब हम कोई डेलिकेट सॉफ्ट सी चीज़ को तोड़ते हैं तो वी डू नॉट यूज़ द वर्ड ब्रेक. हम ब्रेक नहीं बोलते हैं. ब्रेकिंग फ्लावर या ब्रेकिंग लीफ नहीं होता है. वी प्लक फ्लावर, वी प्लक लीफ. सो उसने एक लीफ प्लक किया, एंड देन व्हाट इट डिड, इट dropped it into the river near that ant. उस ant के पास उसने उस पत्ते को गिरा दिया. रिवर में जहाँ पे वो ant स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ को बचाने का, वहीं पर उसने उस पत्ते को गिरा दिया और कहा क्या कि
अब उस चींटे से कहा कि क्लाइम ऑन टू द लीफ माय फ्रेंड, मतलब जल्दी से तुम इस पत्ते पर चढ़ जाओ। क्लाइम ऑन टू दिस लीफ फ्रेंड, हरी मतलब जल्दी करो। तो एंट ने किसी तरह से, द एंट मैनेज टू क्रॉल ऑन टू द रिवर, क्योंकि पानी भी बह रहा था, तो एक एंट के लिए तो वैसे ही कितना मुश्किल था, तो उसने किसी तरह से मैनेज करके वो पत्ते के ऊपर चढ़ गया और देन इट रीच द रिवर बैंक, नदी के किनारे पहुंचा एंड देन इट सेफली जम्प्ड ऑन द लैंड पे आ गया। फिर उसने क्या किया, एंट ने, ही थैंक्ड डव फॉर सेविंग हिज life. He said that he is very grateful that the dove saved its life, and he said that he will never forget this kindness. He said, I will forever be grateful to you, मतलब हमेशा के लिए मैं आपका तुम्हारा आभारी रहूँगा, for saving my life, you saved my life। तो इतना हम पढ़ चुके थे, है ना, इतना हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे का मैंने एक सेंटेंस था that I will write and then explain। A few weeks later, the dove was resting on a tree when a hunter saw her. This line also I explained in the previous video, that a few weeks later, weeks मतलब होता है 1 week equals to 7 days. This I have told you. एक वीक में 7 days होते हैं, from Monday to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 7 days होते हैं. 1 week has 7 days. तो a few weeks लिखा है, मतलब more than 7 days. Later मतलब बाद में, कुछ हफ्तों, few मतलब कुछ weeks के बाद. A few weeks later. Few मतलब होता है थोड़ा, कुछ, जिसको हम हिंदी में कुछ बोलते हैं। तो कुछ हफ्तों के बाद द डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ट्री। रेस्टिंग मतलब आराम करना, वी ऑल्सो रेस्ट। तो दैट डव, द सेम डव विच सेव्ड द लाइफ ऑफ एंट, दैट डव वॉज रेस्टिंग ऑन द ट्री, अपना पेड़ पे आराम कर रही थी। When a hunter saw her, now hunter is the person who kills animals or birds for their greed, अब लालच ही बोलेंगे उनको, बेचने के लिए या मार के खाने के लिए। तो the hunter are the person who kill animals and birds. So a hunter saw that bird, the hunter saw that dove resting on the tree. Then what happened? The फ्रेम में आ रहा है, ओके। The hunter hid behind a bush and aimed his gun at the dove. Okay. The hunter, मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। The hunter hid behind a bush and aimed his gun at the dove. Okay. The hunter hid behind a bush and aimed his gun at the dove. अब ये जो हंटर था, इसने क्या किया, hid behind a bush. hid होता है hide का past tense, hide का past tense होता है hid, मतलब छुप जाना, छुप चुका। तो वो जो हंटर था, वो एक बुश, जिसको बोलते हैं झाड़ियाँ बोलते हैं ना, जंगल में तो बहुत सारी झाड़ी होती है, बहुत सारे ऐसे बुशी प्लांट्स होते हैं।
तो वो एक बुश के पीछे छुप गया। हिड मतलब छुप जाना, ठीक है, छुपना। तो क्यों छुपा वो? क्योंकि अगर वो सामने रहेगा तो मान लो डव की आँख खुल गई तो सामने हंटर को देख लेगी तो वो तो अलर्ट हो जाएगी। तो वो छुप गया। छुप के उसने क्या किया? एम्ड हिज गन एट द डव। छुपने के बाद उसने एम किया मतलब निशाना लगाना। जहाँ डव है उसकी तरफ गन को पॉइंट करना। जहाँ डव है, जो उसका शिकार है, जिसकी तरफ उसे गन शूट करना है, उस डायरेक्शन में अपने गन को पॉइंट करना, दैट इज़ कॉल्ड एमिंग। एम करने का मतलब होता है, हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट एम का मतलब है कि जिस चीज़ को शूट करना है, जिस चीज़ को किल करना है, उसकी तरफ गन को पॉइंट करना, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में, उस चीज़ पर गन को पॉइंट करना, सो दैट जैसे वो शूट करे तो गोली सीधा जो उसका जो गन जो है वो जाके कहाँ पे लगे, बुलेट कहाँ लगे, सीधा जिसको वो किल करना चाहता है उसको लगे। एमिंग का मतलब होता है निशाना साधना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं निशाना साधना, इंग्लिश में कहते हैं एम करना। मतलब पॉइंटिंग द गन टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट विच द पर्सन वांट्स टू शूट। ओके, सो द हंटर ही फर्स्ट हिड बिहाइंड द बुश के पीछे छुप गया और उसके बाद उसने एम लगाया किसकी तरफ? डव की तरफ, क्योंकि उसे डव को मारना था। यस, फिर क्या हुआ? और उसने मन ही मन क्या बोल रहा था वो, ये भी देख लेते हैं। सॉरी, मन में वो क्या बोल रहा है? दैट हंटर aha, that's a nice fat bird। अब उसने क्या किया? निशाना तो वो लगा ही रहा था, साथ में वो मन ही मन क्या सोच रहा था या बोल रहा था? आहा, दैट्स अ नाइस फैट बर्ड। अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, यू कैन सी दिस एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लेम किया। एक होता है ना जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सक्लेमेशन क्या होता है? हम कब ये मार्क लगाते हैं? जब हम अपनी कोई फीलिंग, कोई रिएक्शन शो करना होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे वॉइस से हमारा पता चल जाता है कि हम एक्साइटेड हैं या हम सैड हैं या हम हैप्पी हैं, हम सरप्राइज्ड हैं। ये हमारे बोलने के तरीके से पता चल जाता है ना? कोई भी बात अगर हम कह रहे हैं तो हम खुश होके बोल रहे हैं या बहुत दुखी होके बोल रहे हैं या बहुत सरप्राइज़ होके बोल रहे हैं या एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं वो हमारे बोलने के तरीके से पता चल जाता है ना, बात करते हैं तो। लेकिन जब लिखते हैं तो हम कैसे बताएंगे कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं? उसके लिए हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पे वो हैप्पीनेस को शो कर रहा है ना, आहा, खुश, मज़ा आ गया। क्यों? उसको एक बड़ी सी मोटी सी, मतलब उसको एक अच्छी सी मोटी सी बर्ड मिल रही है। दैट्स अ नाइस फैट बर्ड। उसने मन ही मन सोचा कि मतलब उसको एक बढ़िया सा शिकार मिल रहा है, ये सोच के वो बड़ा खुश हुआ। उसके मन ही मन कहता आहा, मज़ा आ गया, मतलब अच्छा सा बर्ड मारूंगा आज मैं। फिर क्या हुआ? एट द सेम time the ant spotted the hunter with his gun pointed towards the dove। अब क्या हुआ? जब वो ऐसा कर रहा था हंटर, क्या हुआ? एट द सेम टाइम
द ant spotted the hunter with his gun pointed toward the dove. अब जब ये जो शिकारी था, जो ये हंटर था, जब ये एम ले रहा था डव के तरफ, पॉइंट आउट कर रहा था, तो क्या हुआ, द एंट, कौन सा एंट, ये वही एंट है जो रिवर में गिर गया था और जिसको उस डव ने बचाया था। ठीक है, ये वही एंट जिसकी लाइफ उस डव ने बचाई थी, वो एंट वहाँ पर उसने क्या किया, स्पॉटेड द हंटर। स्पॉट करना क्या होता है, देखना, देखना तो ऐसे सॉ भी होता है, द एंट सॉ द हंटर, लेकिन सॉ और स्पॉट में फ़र्क है। मतलब बहुत हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमें दिख रहे हैं, लेकिन हम स्पॉट करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हमारी नज़र हो जाती है। ठीक है, व्हेन वी गो टू मार्केट वी सॉ मैनी पीपल एंड आई स्पॉटेड माई अंकल इन द क्राउड। मतलब बहुत भीड़ है, उस पर मुझे अपने अंकल दिख गए। स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब हुआ दिखना, लेकिन किस तरह से दिखना, मतलब पर्टिकुलरली हमारे नज़र उस पर पड़ जाना। ठीक है, स्पॉट और सॉ में फ़र्क होता है। जैसे मैंने बताया कि आई वेंट टू मार्केट, देयर वर मेनी पीपल एंड सडनली आई स्पॉटेड अ स्टूडेंट ऑफ माइन। उस भीड़ में मुझे अपना एक स्टूडेंट दिख गया, आई स्पॉटेड हिम, मतलब दिख जाना। ठीक है, देखना और दिख जाना, इतने लोग देखा मैंने और उसमें से एक मुझे दिख गया, दैट इज़ स्पॉटेड। ओके, सो हियर है तो मीनिंग इसका सॉ, देखना ही है, लेकिन यहाँ पे क्या, एकदम उसी पर नज़र पड़ जाना। तो जब ये जो हंटर जो था, जब ये निशाना लगा रहा था उस डव की तरफ, तभी वो एंट वहाँ से गुज़र रहा होगा, उसने उस हंटर को देखा, स्पॉटेड द हंटर। क्या करते हुए उसने देखा, विद हिज गन पॉइंटेड टूवर्ड द डव। मैंने बताया था ना, वो एम्ड हिज गन, उसका एम कहाँ था, डव की तरफ। तो एंट ने उसको देखा कि उसने अपना गन किस तरफ पॉइंट किया है, डव की तरफ। हिज गन इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड द डव। अब क्या हुआ फिर, तो एंट ने क्या सोचा, अभी पहले देख लेते हैं कि हंटर क्या बोल रहा है। अब ये जब इसको जो एंड था उसने जब हंटर को देखा तो हंटर ने पूरा पॉइंट किया हुआ था अपना गन, और वो मनी में क्या सोच रहा था, हियर गोज़ माई बुलेट, अब मेरी गोली बस अब लगी उसको, डव को, हियर गोज़ माई बुलेट। बेचारा डव तो रेस्ट कर रहा था, उसको तो मतलब रेस्ट कर रही थी, शी है, और हंटर तो बुश के पीछे छुप के ये सारे काम कर रहा था कि मैं सामने से दिखूं भी ना डव को, क्योंकि डव की अगर आँख खुल गई तो डव तो उड़ जाएगी। तो वो इसलिए छुप के वो एमिंग कर रहा था। वो जो उसने एम लिया था वो छुप के इसलिए किया था कि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ हुई और डव की नींद खुल गई और आंखें खुल गई, वो रेस्ट की पोजीशन में थी तो उड़ सकती है। जैसी वो देखेगी हंटर को वो उड़ जाएगी, या थोड़ा सा भी आवाज़ होगा तो उड़ जाएगी। तो बहुत ही वॉज़ वेरी केयरफुल, दैट इज़ वाई ही वॉज़ हाइडिंग बिहाइंड द बुश। और उसने ऐसी निशाना तो लगाया हुआ था, बस वो कहते बस अब मैं ये गोली चलाऊंगा और ये डव मर जाएगी, मतलब आई विल किल दिस डव। आई होप ये इतना तक आपको समझ में आ गया है। आई विल रब दिस एंड देन आई विल राइट फर्दर। ओके, अब जो एंट है जिसने इस हंटर को देखा, तो एंट ने क्या सोचा, अब एंट सोच रहा है
My friend is in danger. I must help her. अब यहाँ तो वो एम लगा के बैठा ही था और वो बहुत केयरफुल था कि थोड़ी भी आवाज़ वगैरह ना हो, और एंट ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया था। तो एंट क्या सोच रहा है, माई फ्रेंड इज़ इन डेंजर। अब वो चिंता का भाव आ गया उसको, थोड़ी सा हुआ ना कि अरे मेरे दोस्त की जान तो खतरे में है ना। माई फ्रेंड इज़ इन डेंजर, मेरा दोस्त खतरे में है। आई मस्ट हेल्प हर, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। मेरा दोस्त जो है, मेरी जो मित्र है, वो खतरे में है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन टाइम तो बहुत कम है क्योंकि वो गन तो एम कर चुका है, बस किसी भी समय गोली बस उसको चलानी है, उसको शूट करना है ना। ही वॉज़ रेडी टू शूट। तो बहुत कम टाइम है, क्या करें। अब एंट को तो बचाना ही था अपने दोस्त को। तो उसने क्या किया, एंट ने क्या किया, ही Quickly quickly crawled inside the hunter's boots and stung his ankle. चलिए, अब क्योंकि समय बहुत कम था तो एंट ने जब देखा कि उसके दोस्त की जान खतरे में है तो उसने क्या किया, ही क्विकली मतलब बस बिना टाइम वेस्ट किए, तुरंत जल्दी से झट से, ही क्विकली क्रॉल मतलब अपने सारे लिम्स को यूज़ करके मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉलिंग। लिम्स मतलब अपने हाथ पैर। तो अब जो बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जो 4 लेगड जो एनिमल्स होते हैं या 4 या 6 लेगड जो इंसेक्ट्स होते हैं, दे क्रॉल, मतलब वो अपने पूरे लिम्स को यूज़ करते हैं फॉर मूविंग। हम लोग क्या है, हम लोग अपने हाथों के बल तो नहीं चलते हैं, हम तो पैरों से चलते हैं। लेकिन जो छोटे बेबी होते हैं वो अपना हाथ भी यूज़ करते हैं, पैर भी यूज़ करते हैं ना। जब वो चलना सीख रहे होते हैं तो वो क्रॉल करते हैं, अपना पैर भी यूज़ करते हैं और अपना हाथ भी यूज़ करते हैं। व्हेन दे मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो क्रॉल करके जाते हैं। आपके घर में अगर छोटा बेबी कोई होगा जो अभी चलना सीख रहा है, जिसको चलना भी नहीं आता होगा, पर वो मूव करते होंगे, तो कैसे मूव करते होंगे, क्रॉल करके, है ना। घुटनों के बल चलते हैं, अपने पैरों और अपने हाथों को यूज़ करते हैं फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉलिंग, मतलब बेबी क्रॉल्स। ऐसे ही जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनके 4 लेग्स होते हैं, जिनके 6 लेग्स होते हैं, वो सारे लेग्स यूज़ करते हैं अपने फॉर मूविंग। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो अपने पूरे लिम्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉलिंग। तो यहाँ, और वो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रनिंग। रनिंग तो तेज़ मूवमेंट होता है ना, लेकिन क्रॉलिंग में बहुत तेज़ मूवमेंट नहीं होता, लेकिन स्टिल इट इज़ बेटर। तो वो जो एंट था, इट क्विकली क्रॉल, जल्दी वो गया कहाँ, इनसाइड द हंटर्स बूट। जो हंटर ने जो बूट्स पहने थे, जो उसने जूते पहने थे ऊंचे तक, जो हंटर्स लोग होते हैं ना, वो हंटर्स के बूट भी थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से बड़े वाले बूट्स होते हैं, मतलब बड़े मतलब एंकल से ऊपर तक होते हैं वो, जो हंटर के बूट्स होते हैं, जो शिकार करने जाते हैं, उनके जो शूज़ होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उनको हम बूट्स बोलते हैं। और उनका जो हाइट होता है बूट का, वो थोड़ा ऊंचा होता है। तो वो एंट था, वो जल्दी से क्रॉल करके, और वो कहाँ चला गया, हंटर के बूट में वो घुस गया। चींटी तो कहीं भी घुस सकती है, या चींटा तो कहीं भी घुस सकता है ना, उसको तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा भी जगह मिलेगी तो चींटा या चींटी जो है वो आराम से किसी भी चीज़ में घुस जाते हैं। आपने देखा होगा, आप चीनी के बर्तन को कितना भी बंद कर दो टाइट, लेकिन चींटा पता नहीं कैसे अंदर घुस जाता है। देखा आपने कभी ऐसा? मम्मी अगर किचन में उन्होंने चीनी का जो डब्बा वगैरह रखा होगा, कभी कभी देखना कि डब्बा बंद भी रहता है तो भी उसमें चींटियाँ घुस जाती हैं, ऐसा होता है ना। कोई ऐसे खाने की चीज़ रखी है, बिस्किट्स वगैरह, और थोड़ा सा भी जगह मिलता है तो चींटियाँ उसके अंदर घुस जाती हैं। आप खोलोगे डब्बा, उसमें चींटी घुसी रहती है
होता है ना कभी कभी ऐसा कि आपको लगता है कि आपने तो बंद रखा था, फिर ये चींटी कैसे अंदर चली गई। दे जस्ट नीड स्मॉल स्पेस एंड दे कैन एंटर एनीवेयर। तो यहाँ पर बूट में तो बहुत जगह होती है ना। तो फटाफट क्रॉल किया और वो बूट के अंदर घुस के उसने उसके एंकल पे क्या किया, स्टंग। स्टंग का मतलब होता है डंक मारना, स्टिंग का पास्ट टेंस है ये। अब जो चींटे होते हैं या कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, दे हैव स्टिंग, उनके पास डंक होता है। जैसे आपने देखा होगा वास्प, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, टिड्डा बोलते हैं ना, बिढ़नी बोलते हैं, या यूपी में उसे बिढ़नी बोलते हैं। येलो कलर का और मैरून कलर का होता है वो, इंग्लिश में वास्प बोलते हैं। इट हैज़ वेरी शार्प स्टिंग। वो अगर जहाँ भी वो अगर स्टिंग कर देता है तो वो स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है और इतना पेन होता है। जैसे हनी बी का भी स्टिंग कितना शार्प होता है, ज़रा सा मधुमक्खी अगर डंक मार दे तो पूरा वो जगह फूल के बलून जैसा हो जाता है, कितना पेन होता है। इट इज़ बिट पॉइजनस, है ना। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्टिंग होता है एंड दे बाइट थ्रू देयर स्टिंग, मतलब वो काटते नहीं हैं, दे जस्ट पुट दैट निडल सॉर्ट ऑफ थिंग इन योर स्किन। उनका जो नुकीला सा पॉइंटेड सा जो चीज़ होती है जिसको हम स्टिंग बोलते हैं, डंक बोलते हैं, वो क्या करते हैं, स्किन के अंदर प्रिक कर देते हैं, झट से प्रिक कर देते हैं। वो इतना शार्प होता है, इतना पॉइंटेड होता है कि वो हमारे स्किन के अंदर घुस जाता है। तो दे जस्ट प्रिक आर स्किन, हमारे स्किन के अंदर वो घुस जाता है उनका स्टिंग, डंक। तो जो वो डंक मारना जो होता है उसको हम कहते हैं डंक मारना या स्टिंग करना। तो स्टिंग का पास्ट टेंस है स्टंग, उसने कर दिया ना, हो चुका। तो एंट ने क्या किया, ही स्टंग हिज एंकल। अभी एंकल क्या होता है, एंकल कौन सा बॉडी का पार्ट होता है। अब बूट की बात हो रही है तो पैरों से रिलेटेड है। एंकल जो होता है वो हील्स के ऊपर होता है, हमारे फुट के पास ऊपर, जहाँ पर हम जो लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं पायल पहनती हैं, एंकलेट्स पहनती हैं। जहाँ पे पायल पहना जाता है दैट इज़ कॉल्ड एंकल। हील्स के ऊपर वाला पार्ट जो हमारी एड़ियाँ हैं उसके जो ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एंकल। जहाँ मम्मी आपकी पायल पहनती होगी दैट इज़ कॉल्ड एंकल। कुछ सॉक्स भी मिलते हैं एंकल लेंथ के, जो बहुत ऊंचे तक नहीं होते हैं। लॉन्ग जो सॉक्स होते हैं वो तो स्टॉकिंग्स की तरह होते हैं। कुछ छोटे छोटे सॉक्स होते हैं जो एंकल लेंथ के ही होते हैं। तो जहाँ पर हम पायल पहनते हैं लेडीज़ उसको बोलते हैं एंकल। इट इज़ द एरिया जस्ट अबव द हील, जो एड़ी है उसके ऊपर होता है। तो उसने क्या किया, बूट में उसने तुरंत घुसा वो एंट और उसने उस शिकारी को वहाँ पे डंक मार दिया। अब क्या होगा अगर कोई चीटा, ऐसे हम लोग बोलते हैं चीटे ने काटा, चीटे ने काटा, चीटा काटता नहीं है, वो डंक ही मारता है। उसका जो पॉइंटेड हो रहता है ना मुँह के पास, वो चुभा देता है। तो हम कहते हैं चीटी ने काट लिया। तो वो काटना नहीं होता, एक्चुअली स्टिंग करना ही होता है। लेकिन जब चींटा काटता है या चीटा का जब स्टिंग लगता है, हम हिंदी में तो कहते हैं ना चींटी ने काटा, तो कैसा लगता है हमें, तो दर्द होता है ना एकदम, और एकदम से ईचिंग होने लगती है और एकदम से हम ऐसे हो जाते हैं। अगर आप बैठे हो और कोई चींटी आके झट से काट ले तो आप ऐसे हो जाओगे। हमारा क्या होता है, वी शेक, हम मूव कर देते हैं, है ना, और दर्द भी होता है। तो सेम यहाँ पर उस हंटर के साथ हुआ। जैसे ही चींटे ने डंक मारा होगा तो क्या हुआ होगा, वो हिल गया होगा, है ना, कुछ तो हुआ होगा ना, यस। तो जैसे ही चींटे ने डंक मारा, हंटर का क्या हुआ होगा, मर गया नहीं, मरेगा थोड़ी ना, चींटे के काटने से तो मरेगा नहीं, है ना, लेकिन कुछ तो हुआ होगा, उसका बैलेंस बिगड़ गया होगा, है ना। यही लग रहा है ना कि जब चींटे ने काटा हो तो उसने पैर ऐसे कर दिया होगा, तो गन जो है वो तो हाथ में थी तो गन हिल गई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। चलिए क्या हुआ होगा ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। आज के वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान ली, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे चलेंगे ना, बहुत फास्ट पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें समझ में आपको नहीं आएंगी। तो अब जब चींटे ने काट लिया उसके पैर में, या हम हिंदी में काटना बोल रहे हैं, एक्चुअली इट स्टिंग, डंक मारा, तो
शिकारी का क्या हुआ? क्या वो गोली मार पाया डव को? क्या डव मर गई, सॉरी मैं गया बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ शी, फीमेल है, तो क्या वो मर गई? क्या उसकी जान बच गई? शिकारी ने कैसे क्या किया, ये हम जानेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।